Bismillahirrahmanirrahim. Hope you all are fine and we start our session. I think my voice is clear and screen share with you guys as well. Can anybody confirm me? Yes, sir. Okay. So we are talking about the fault in power system, the causes and effects that is make a fault itself a fault. So further we are moving toward the types of fault which are symmetrical faults and unsymmetrical faults. So these are the main aspects of faults which very well know about you guys. Can anybody confirm me what is the difference between symmetrical faults and unsymmetrical faults? Yes, my friend. What is the main difference between symmetrical and unsymmetrical faults? Symmetrical and unsymmetrical faults. So symmetrical faults give rise to equal currents in lines displaced by equal phase angle of 120 degree in three-phase systems. We all know this thing that the phase difference of angle that is in between the three phases of red, yellow, blue, the starting phase would be 0 at the reference, another phase difference would be 0 and another would be 120 degree, and after that that would be 240 degree. So every phase with another phase is the have a difference of 120 degree of phase difference. And how we got 120 degree? Can anybody tell me that how 120? Why 120? Why it is not 140? Why it is not 110, 100? Why it is 120 सर degree? Yes. सर क्योंकि पूरा डिग्री आप देखेंगे 360 का होता है तो 360 डिवाइड बाय 3 सर तो 120 के जाविये से थ्री फेस को डिवाइड कर दिया जाता है तो इसलिए 120 का फेस शिफ्ट रखा जाता है उसमें. Yes, my friend, you are right. Because the whole overall the circular path view of sine wave is 360 degree, and we have the three phase divided by three, which means to get right the 120 degree, the value of a single phase of each other, the 120 degree apart. With this is the placement of three phase in 360 of region. So we got the value of 120 degree as an average part in this phase system. So moving towards the example, a short circuit of all three phase conductors of a cable at a single location. So the three phases are combined in a single location. So it become a symmetrical fault. Yes, anybody of you if have the kind of question, please ask. I will answer the kind of question. सर मतलब ये ऑल थ्री फेजेस का मतलब जैसे हमारे ये गली कोने पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होता है इसकी जो केबल जा रही है अगर ये इनमें स्पार्क हो जाए यानी तीनों मिल जाते हैं सर इसी यही फॉल्ट बता देना कि जी सर तीनों फॉल्ट एक ही सिंगल लोकेशन पे मिल जाए. जी Janab. When all the three phase of lines are combined into a single location, combined with each other three of them, then it will name as a symmetrical fault. Okay. Yes, you are right. Further, we moving toward the symmetrical fault. So symmetrical faults in which not all the line currents are equal and not all have the same phase. Moving towards the example, anyone single phase line to ground fault, that is the single line to ground fault, that is if a line is combined with the ground, that fault particularly we said or called a line to ground fault. Then if two phases are combined with the ground, it's called a line to line ground fault. And the third category of fault is that if two lines of phases are combined with each other, then the three further possible scenario is also known as the
line to line fault or unsymmetrical fault. Okay, one thing which I missed here, that if three phases are combined into a single location, it is called a symmetrical fault. But the second category also be there, which is if three phases with combined with the ground, that is also called a symmetrical fault, because this category is not mentioned here. I think you very well understand, which I explained with you guys, that if three of phases are combined with each other in a single location, but with the ground, is also known as a symmetrical fault. So these are the category of three example of unsymmetrical fault, and there are two example of symmetrical faults. I think you understand what I explained with you guys. What is the thing which I want to understand you guys, that what is the difference between symmetrical and symmetrical, and the example two examples of symmetrical and three examples of unsymmetrical faults. I think you understand very well this manner. We further moving towards the next category of fault in power system, the abnormalities in power system, that is the overcurrent. What are the results if fault occur, then what are the abnormalities that produce in our existing power system? So that possibilities, abnormalities we are mentioned here, so which are overcurrent. In the causes of overcurrent, and in the result of overcurrent, the overload is produced, short circuit, that means the short circuit current is produced, and in open circuit, which means the open circuit, after the short circuit, by the cause of short circuit, the circuit become open. That condition is called an open circuit. And in open circuit there are infinite resistance, and in short circuit there is a overcurrent and short circuit current, and overload condition is also a part of overcurrent aspect. Now the second aspect of the abnormality is ground potential. So the specification of ground potential is that the undergrounded equipment, if the potential is underground, equipment is in underground, touch potentials and step potential, these are the three category of ground potentials, which I explain you guys in later. But these are also a specified signs about the ground potential, which are underground equipment, ground potential category, and touch potential with the step potentials. Now another abnormalities or causes by which the short circuit produce surge voltages, which are lightning strokes. So as the result of lightning stroke, the surge voltage would appear. In the result of switching surges, the surge voltage produced, and in the result of harmonic distortion, which are also derived by the term total harmonic distortion, also derive the term surge voltages. So we further moving the categorization of fault, which are mentioned in. सर Yes, सर my ये friend. हार्मोनिक क्या? हार्मोनिक क्या होता है, ये पूछ रहे हैं आप? यस सर, ये पूछ रहा हूँ. अच्छा अच्छा, जो हार्मोनिक जो होते हैं ये इसको इस तरह से समझने की कोशिश करें, बल्कि मैं एक एक वेव से समझाता हूँ आपको, एक रिजल्ट से. तो हार्मोनिक के हवाले से वैसे हमने अपने प्राइमरी कुछ लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया है. और जो हार्मोनिक्स होते हैं वो सिस्टम के लिए एक नुकसान का बायस है. ये सिग्नल को डिसॉर्ड करते हैं और इससे सिस्टम में लॉसेस आते हैं. और इन हार्मोनिक्स को नल एंड वाइट करना जरूरी है, जिसके लिए हार्मोनिक फिल्टर्स लगाए जाते हैं. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हार्मोनिक्स होते क्या हैं. अच्छा, ये तो मेरे ख्याल में आप जानते हैं इस चीज को, कि जो हार्मोनिक होते हैं ये हमारे घर में जो वेव आती है वो साइन वेव होती है.
और हमारे घर जो वेव आती है उसे साइन वेव कहा जाता है। और साइन वेव जो होती है वो एक अपनी एक नेचर रखती है। ठीक है भाई, निशान आता सर कौन के ओके, तो ये जो हार्मोनिक्स होते हैं, आप इसको गौर से देखिएगा। हमारे घर जो वेव आ रही होती है ना, साइन वेव, वो ये रेड कलर की वेव आ रही होती है। ये हमारे घर वेव आ रही होती है, या हमारी अप्लायंसेस में ये वेव आती है। लेकिन होता यह है कि यूटिलिटी की तरफ से जो हमें सिग्नल मिलता है उसमें हार्मोनिक्स भी शामिल होते हैं, हार्मोनिक्स लॉसेस होते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है, आपके घर में मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान रहमत होते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी अगर छोटे छोटे आ जाएं तो आपको पता है कि वो मतलब जीना आराम कर देते हैं। कभी यहाँ घुस जाते हैं, कभी कभी किसी चीज को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, कभी प्लग में उंगली डाल देंगे लेट से। तो और जब वो चले जाते हैं तो आपको पता है घर की हालत क्या हो जाती है। तो हार्मोनिक्स ऐसे ही होते हैं कि भाई सिग्नल तो साथ आता है, सिग्नल सिग्नल तो साथ आ ही रहा होता है ये, लेकिन साथ में ये लॉसेस आते हैं, हार्मोनिक के बच्चे होते हैं। और ये बहुत सारे इसके लॉसेस होते हैं हार्मोनिक्स के, जैसे हम कहते हैं इसके कंपोनेंट्स हार्मोनिक्स के, जो कि लॉसेस का बायस बनते हैं। अच्छा, साइन वेव की नेचर ये होती है कि साइन वेव जो एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज सॉरी, तो फोरियर सीरीज साइन वेव में ऑड नंबर्स पे लाई करती है। यानी उसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे फोरियर सीरीज के, जो फर्दर कंपोनेंट्स बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं, वो कंपोनेंट जो होते हैं ऑर्ड में होते हैं, यानी 1 3 5 7 और फिर सो ऑन इसके आगे चलते हैं। ठीक है, फिर सात सात के बाद क्या नंबर आएगा, 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 17 आएगा, 15, इस तरह ये ऑर्ड में चलते हैं। ऑर्ड नंबर जो समझते होंगे आप लोग। तो जो पहला होता है ना इनमें जो रेड, उसे कहते हैं फंडामेंटल, और हार्मोनिक का भी पहला कंपोनेंट। अगला कौन सा होगा, थर्ड हार्मोनिक। उसके बाद अगला कौन सा होगा, फिफ्थ हार्मोनिक, फिर सेवेंथ हार्मोनिक, फिर नाइन्थ हार्मोनिक, फिर 11th हार्मोनिक। तो इन्होंने 7 के बाद से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी हार्मोनिक कंपोनेंट होंगे उन्हें मिलाकर ये येलो वाली वेव बनाती है। यानी सारे हार्मोनिक आगे जितने भी आने वाले हैं उन सबको मिला के ये वेव बनाती है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं हाफिज साहब, आपने जो पूछी है। अभी स्टोरी कंटिन्यू होगी। यस सर। अच्छा जी, तो ये जो हार्मोनिक होते हैं ये लॉस का बाइस बन, अब जरा सोचें कि, अच्छा मैं इसको भी बात बता दूं कि ये जो हार्मोनिक है ये लॉस का बाइस बनता है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बात है जो बताता चलूं मैं आप लोगों को। ये जो हार्मोनिक होते हैं ना, जैसे फर्स्ट के बाद कौन आता है, थर्ड। अच्छा, फर्स्ट का कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये क्या, फर्स्ट जो रेड वाली वेव है ये एक साइकिल है ना, लेकिन जो ये थर्ड हार्मोनिक है इसमें कितने साइकिल होंगे, 3 साइकिल होंगे। गौर करें, 1 2 और 3। लेकिन एम्पलीट्यूड में पहले वाले के मुकाबले में 3 गुना छोटा है। सही। इस तरह फिफ्थ हार्मोनिक की हम बात करते हैं, फिफ्थ हार्मोनिक सिस्टम को फिफ्थ टाइम डिस्कार्ड करता है, और फंडामेंटल के मुकाबले में इसके जो साइकिल्स होते हैं वो 5 होते हैं। अब ब्लू वाले के 5 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 साइकिल वेव के सिग्नल के साथ इंसर्ट हुए हैं, जबकि आपको ये चाहिए भी नहीं है और ये आ रहे हैं। और ये फिफ्थ टाइम एम्पलीट्यूड में फंडामेंटल के मुकाबले में 5 गुना छोटा है। अच्छा, अब आते हैं फिफ्थ के बाद सातवें हार्मोनिक पे। सातवां हार्मोनिक का जो कंपोनेंट है, अगर आप इसको गौर करें तो ये फंडामेंटल के मुकाबले में पर्पल वाला 7 गुना छोटा है, और इसके 7 साइकिल होंगे। गिन लें, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ तक भी बात क्लियर है जनाब। यस सर। मैंने कंपोनेंट के साइकिल की बात करी और इनकी हाइट की बात करी, इनकी सिग्नल की जो हाइट है। तो हार्मोनिक आपको इन सब में है। अब येलो की बात करते हैं। इसी तरीके से 7 के बाद इनफाइनाइट हार्मोनिक ऑर्ड के आएंगे साइन वेव में जो लाई करते हैं। अच्छा, ये आया कहाँ से है, फोरियर सीरीज का जब एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक डीसी कंपोनेंट होता है, एक उसका एसी कंपोनेंट होता है, फिर एसी में भी फिर एक कॉस वेव होता है और एक साइन कंपोनेंट होता है।
अच्छा, हम अगर इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे घर में जो वेव आती है अमूमन सिग्नल्स के तौर पे यूटिलिटी की, तो वो साइन वेव होती है। तो फोरियर सीरीज ने हमें ये बताया है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ने हमें ये बताया एनालिसिस के थ्रू कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं साइन वेव के लिए, कॉस नहीं होगी फिर वहां पे, तो साइन वेव जिन कंपोनेंट्स पे लाई करती है वो उसके ऑड कंपोनेंट्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8 नंबर्स नहीं है यहाँ पे ना, ऑड नंबर्स नहीं है, सिर्फ इवन नंबर्स, क्योंकि साइन वेव इवन नंबर्स पे लाई करती है। अब मुझे ये बात बताएं कि जब ये इनफाइनाइट कंपोनेंट इसके सारे आ जाते हैं तो वो सारे के सारे यानी 9 से लेके इनफाइनाइट तक मिला के उन्होंने येलो के अंदर कंबाइन कर दिए हैं। तो आपको इन सब में से चाहिए क्या? हेलो हेलो। जी अजान हो रही है तो मैंने एक ब्रेक ले लिया है कुछ मिनट का। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले कि जब हमारे घर में साइन वेव आती है, तो ये तो अंदाज सबको है कि हमारे घर में साइन वेव में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो साइन वेव फोरियर सीरीज फोरियर एनालिसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो साइन फोरियर ने बताया कि साइन जिन सिग्नल्स पे एग्जिस्ट करती है कंपोनेंट्स के ऊपर, वो फर्स्ट होता है, थर्ड होता है, फिफ्थ होता है, सेवन होता है, और उनके सो ऑन रिजल्टेड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो पहला कंपोनेंट फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक कहलाता है। उसके बाद अगला कंपोनेंट थर्ड हार्मोनिक होगा। थर्ड हार्मोनिक जो है 3 साइकिल पे बेस्ट करेगा और 3 टाइम्स फंडामेंटल के मुकाबले में एम्पलीट्यूड में कम होगा। फिफ्थ हार्मोनिक अपने 5 साइकिल लेकर आएगा, लेकिन एम्पलीट्यूड में पहले के मुकाबले में 5 गुना कम होगा। इस तरह सेवन हार्मोनिक जो पर्पल कलर से है, ये इसके 7 साइकिल्स लेकर आएगा सेवंथ हार्मोनिक, और सेवंथ टाइम सिग्नल ऑफ फर्स्ट को डिस्कार्ड करेगा। और ये जो हार्मोनिक का जो इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली सेवंथ हार्मोनिक का वो 7 टाइम फंडामेंटल के मुकाबले में लेस एम्पलीट्यूड रखेगा। तो ये जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, ये देख रहे हैं आप डिस्टॉर्शन। अब मुझे बताएं, अच्छा उसके बाद जो 7 के बाद 9 से लेके इनफाइनाइट कंपोनेंट है, उन सबको उन्होंने मिला के येलो के येलो सिग्नल में बेस्ड कर दिया, येलो सिग्नल के ऊपर बेस्ड कर दिया कि सारे के सारे जो कंपोनेंट आगे हार्मोनिक के आने वाले हैं वो ये होंगे। अब मुझे बात बताएं कि आपको जो साइन वेव चाहिए, क्या इनमें से क्या चाहिए आपको अपने घर के कोई अप्लायंस चलाने के लिए? सर साइन वेव चाहिए। सिर्फ रेड वाला सिग्नल साइन वेव चाहिए मुझे, लेकिन आगे क्या क्या रहा है ये कि आपने देखा इसको कि इनमें ये सारी वेव्स आ रही होती हैं हमारे घर में, जब हम इसका साइन वेव एनालिसिस करें तो ये इन सबको अगर मिलाकर आप साइन वेव देखें तो इसकी बहुत अजीब सी शक्ल आ रही होती है। ठीक है, हमारे घर जो साइन, वो प्योर साइन वेव नहीं होती, फिर वो बिल्कुल कोई अजीब सी वेव हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह की वेव को प्योर साइन वेव में लेके आना होता है, और उसके लिए
एक फिल्टर लगता है जो कि लो पास फिल्टर होता है। उन सब से ये सारे कंपोनेंट जो है खत्म हो जाते हैं और सिर्फ साइन वेव उससे बचती है, क्योंकि इन सब की फ्रीक्वेंसी हाई है। आप देखें पहली फ्रीक्वेंसी जो रेड है उसका एक साइकिल है, लेकिन बाकी जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं उनके मल्टीपल वो हैं क्रस्ट एंड ट्रफ्स। तो इन सारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। सबसे कम किसकी है? रेड वाली। तो आप लो पास फिल्टर लगाते हैं 50 हर्ट्ज का और इन सबको निकाल के आप 50 हर्ट्ज हासिल कर लेते हैं और इस तरीके से आप हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, अच्छा इन पूरे के पूरे सिस्टम का एनालिसिस कहलाता है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालिसिस। तो ये बात निकली कहाँ से है, ये हाफिज साहब ने एकदम छेड़ दी थी, तो मैंने फिर ये बताई है कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं और इनका इम्पैक्ट सर्जेस के ऊपर भी आता है। अब समझ रहे हैं कि ये इसका इम्पैक्ट आया कहाँ से और इसका इम्पैक्ट सर्ज ऑफ सिस्टम ऑफ वोल्टेजेस के ऊपर जो आता है और फिर उसका एनालिसिस पूरा किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है तमाम बातें? यस सर। अच्छा, हमारे पास जो सेशन है ये एंड हो रहा है, लेस देन अ मिनट रह गया है हमारे पास। ये सेशन यहाँ पे एंड होगा। मैं प्रोवाइडेड लिंक से अगेन अपने सेशन को कंटिन्यू करूँगा, तो आप सब लोग सेशन को दोबारा कंटिन्यू ज्वाइन करिएगा विद द सेम